Hello students, welcome to Edify JEE NEET Pragyan batch. As like in previous class, I have already started Kingdom Fungi. Today I am going to discuss about the classes of fungi. Each and every class I'll explain you in details. Okay. So let's discuss today's class, that is Kingdom Fungi. Okay. So see, first class of Kingdom Fungi is Phycomycetes. It's Phycomycetes. Okay. So the basic knowledge of Phycomycetes is that the fungi that is included in the class of Phycomycetes, they are known as lower fungi. क्या नाम है उनका? This question is important from NEET point of view. They are known as lower fungi. Okay. Members of Phycomycetes are found in where they are found. The habitat you should know. कहाँ कहाँ found होते हैं? This is about habitat. Where they are found aquatic habitats, मतलब basically water areas. कहाँ पाए जाते हैं? पानी. And on decaying wood, ये जो वुड जो खराब हो चुका है या डिके कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो जैसे कि गीला होता है ना, एनी वेट सरफेसेस, मॉइस्ट हो गया, या डैम्प प्लेसेस. लाइक डैम्प किसको कहते हैं? वेयर सनलाइट कुडंट रीच. ओके. सो इन दैट डैम्प प्लेसेस दिस Phycomycetes, the organisms of Phycomycetes used to grow. Okay. So this is the habitat of Phycomycetes. A very common example I'll show you, that is Aspergillus. Aspergillus, देखो मैं बताती हूँ. This is the diagram of Aspergillus, a very common diagram. Okay. This is ऐसे they appear in this shape. Okay. So this is a Aspergillus. Okay. So let's see next slide of Phycomycetes. So that was about the habitat and which type of fungi are included in Phycomycetes. Okay. Now we are going to study about the mycelium. Like what I told you, network of hyphae is called mycelium. Like in previous class I have already discussed with you. देखो, this was the hyphae. Okay. Single. Okay. So this was the hyphae. एक septate था और एक sinusotic था. Okay. So what happens here is, here mycelium, this is the septate. मतलब this is a septate because there is a layer between the hyphae. But in case of Phycomycetes, what happened? They are aseptate. Like I have shown you this diagram, a very common diagram. Okay. There won't be any septate, but it will multinucleated. They are multinucleated and sinusotic. Okay. Sinusotic. That means aseptate means no septa is present. Okay. Excuse me. No septate are present in case of Phycomycetes. You have to remember this because mycelium always comes in the exams. कि mycelium कैसा था, Phycomycetes हुआ. They'll give the examples and then they'll ask you that the mycelium is septate or aseptate. So you have to remember कोई septate, they are aseptate, मतलब septate नहीं होता है और sinusotic होते हैं. Just like in previous class I have shown you the diagram. Just go and see the previous class of fungi. You'll get to know the details of the sinusotic and aseptate. Okay. Also I have explained it here. Chalo. The mycelium you have to remember from NEET point of view. Next, move on to asexual reproduction. Asexual reproduction, it takes place by zoospores or by aplanospores. I have told you in previous class that in case of sporangiospores, two types of spores are produced. One was zoospores and the other was aplanospores. Zoospores क्या होता है? That is motile. They can move. Okay. And aplanospores, they are non-motile. They don't have any movement. They don't do any movement. तो asexual reproduction का कैसे होता है? Zoospores से and aplanospores पे. This also you have to remember. Very interesting. Previous class से link करके हमारे हर एक classes of fungi को discuss कर रहे. Okay. Nothing tough is there. Okay. Easy है, बहुत easy है. Terminology आपको समझना है, सब कुछ easy लगेगा. Okay. Already I have told you
दैट इन ज़ूओस्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड, मैंने डायग्राम दिखाया था, अब डायग्राम याद रख, देखो ऐसा था कि नहीं डायग्राम, स्पोर्स, ये स्पोर्स था, ओके, ये स्पोर्स, तो ये स्पोरेंजिया, ओके, और जब सेपरेट होगा तो क्या होगा, रप्चर होके ये स्पोर्स ऐसे निकलने लगेगा, स्पोरेंजिया स्पोर्स ऐसे निकलने लगेगा, फिर इंडिविजुअल स्पोर्स फॉर्म होगा, ओके, एंड देन इट विल फॉर्म माइसेलियम, एंड अगेन दे विल फॉर्म दिस टाइप। तो ये डायग्राम आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा। तो फाइकोमाइसिटिस में भी इसी तरीके का इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, ओके, एंड दैट स्पोर्स आर एंडोजेनस, दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ओके, वेरी क्लियर, ओके, क्लियर करते करते जाइए, बहुत इजी है, वेरी सिंपल, डायग्राम के साथ याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोगेमस? आइसोगेमस मीन्स, वेट आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, वेट, ओके, चलो, तो व्हाट इज आइसोगेमस? आइसोगेमस का मतलब होता है द गैमेट्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जो गैमेट्स देखने में बाहर से सेम हो, मॉर्फोलॉजी उसकी सेम हो। क्या है डेफिनेशन ऑफ आइसोगेमेट्स? गैमेट्स विच आर सिमिलर in morphology, okay, so this you have to remember। iso मतलब, iso का मतलब भी हो गया सेम, और aniso is the opposite of iso, तो aniso में क्या होगा, it's different, okay, different, that means the gametes which are dissimilar in morphology, क्या होगा, this is dissimilar in morphology, okay, done। so from this you have to remember कि asexual reproduction कैसे होता है, by zoospores and aplanospores, and sexual कैसे होता है, isogamous and isogamous, okay, okay, am I clear to you all? So this thing you have to remember। next slide is I'm going to show you the diagram in case of phycomycetes। बेसिकली फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है, ज़ूओस्पोर्स होता है, oh my god what happened, wait, फाइकोमाइसिटिस, ओके, तो फाइकोमाइसिटिस का कॉमन एग्जांपल क्या है, म्यूकोर है, जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द डायग्राम ऑफ म्यूकोर, राइट। So here what I have to show you is that in case of phycomycetes, two types of gametes are produced। I have already shown you the zygomycetes, okay, two types of gametes होते हैं। क्या होता है, एक phycomycetes में two types of gametes होते हैं, एक होता है oomacetes, एक होता है zygomacetes, ओके। oomacetes में क्या होते हैं, oomacetes का वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज फाइटोप्थोरा infestans, okay, and in case of zygomycetes you all know a very common example is that mucor and Rhizopus albuga candidus, तो दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट स्लाइड। और डायग्राम जैसे कि प्रीवियस, जैसे कि मैंने दिखाया आपको अबाउट द फाइकोमाइसिटिस, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द फाइकोमाइसिटिस, दैट इज अबाउट द माइसिलियम और अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूओस्पोर्स,
ओके, ज़ूओस्पोर्स। तो कैसे होगा ज़ूओस्पोर्स, मतलब ऐसे होंगे। दिस स्पोरेंजियोस्पोर्स में ये स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एंड अगेन व्हाट हैपन्स, दिस वॉल विल रप्चर एंड कम आउट, एंड देन individual spores will come out. This will lead to mycelium, and this mycelium will again continue this step. So this is about the sexual reproduction in case of, that is, Phycomycetes. Okay, done Phycomycetes. We'll see the example of Phycomycetes, a very common example, Rhizopus, and I am telling you to remember the common name even, क्योंकि एग्जाम्स में आता है राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस आता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, म्यूकोर इज नॉन एज, म्यूकोर इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डंग फंजाई. ओके, एंड दैट is mucor is known as dung fungi, that you have to remember from neat point of view. Question may come, mucor is known as dung fungi, whether it's wrong or right. If you don't know that mucor is known as dung fungi, how could you write the statement? Okay, next is Phytophthora infestans. This is also very common example that comes in NEET, and this causative agent, that is this fungus causes late blight of potato. In potato में क्या होता है, दिस इज अ पोटैटो, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देखते हो ना, वो क्या होता है, वो फंगस डिजीज होते हैं. ओके, फंगस डिजीज होते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अल्बुगा कैंडिडा. अल्बुगा कैंडिडा इट कॉजेज वाइट रस्ट डिजीज, ये भी आपको याद रखना है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको इंक्लूड करना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट एफ्लाटॉक्सिन, विच आई थॉट नो, it's in Ascomycetes, and it's not in Phycomycetes, it's in Ascomycetes. okay, तो एग्जाम्पल्स में आपको दिस 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना ही है, इट्स मैंडेटरी फॉर योर नीट एग्जाम. Albuga candida, it causes white rust disease. Phytophthora infestans, it causes late blight of potato. Mucor dung fungi. So this question always comes in the NEET exam. Okay, चलो let's see next slide. नेक्स्ट आ गए हम एस्कोमाइसिटिस, द सेकंड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई. एस्कोमाइसिटिस सबसे पहला लाइन जो कहते हैं, दे आर कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई, एंड दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम इन द नीट एग्जाम. एस्कोमाइसिटिस इज नॉन एज सैक फंजाई, दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम, गांठ बांध के रख लो. ओके, नेक्स्ट है दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स हेल्प देम इन देयर मेटाबॉलिज्म. ओके, मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर. पेनिसिलियम जो है ये मल्टीसेलुलर है, दिस इज मल्टीसेलुलर, बट यूनिसेलुलर क्या है, ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, ईस्ट है यूनिसेलुलर. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या कौन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ईस्ट. ओके, ईस्ट जो है is unicellular, and that you have to remember, exception always comes in the exam. Ascomycetes का organisms multicellular है, but unicellular कौन है, ईस्ट, Saccharomyces. ओके, नेक्स्ट आ गया, they are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous. That is coprophilous किसको कहते हैं, this terminology always comes in the exam, neat point of view से याद रखिए. saprophytic मतलब they'll absorb their nutrition फ्रॉम द होस्ट, एब्जॉर्व करके न्यूट्रिशन निकालेंगे. डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करेंगे, जो सड़ा गला चीज उसको डिकम्पोज कर देंगे. पैरासाइटिक मीन्स दे विल सर्वाइव ऑन द लिविंग होस्ट. कॉप्रोफिलस मीन्स दे विल ग्रो ऑन काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है ना, उस पे ये फंगस ग्रो होते हैं. गाय का गोबर पे देखते हो अब फंगस हो जाता है, वो ये एस्कोमाइसिटिस जो है उस पे ग्रो होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस. दिस टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर. हो गया एस्कोमाइसिटिस. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो एस्कोमाइसिटिस में माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. अब कंपेयर करके याद रखिए, फाइकोमाइसिटिस में क्या था, ए सेप्टेड था, सिनोसाइटिक था. ओके, कोई ब्रांच नहीं है, सीधा रहेगा, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट रहेगा. डन, वेरी सिंपल, क्लियर. और इसमें क्या होगा, ब्रांच्ड होगा,
तो देखो ब्रांच्ड होगा, बहुत सारी ब्रांच होंगी, जैसे कि ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, फिर ये ब्रांच हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, सेप्टा फॉर्म होगा, सेप्टा 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 फॉर्म होगा, दिस इज सेप्टा। ओके, तो इसमें क्या होगा, एस्कोमाइसिटिस में ब्रांच्ड होगा और सेप्टा होगा, याद रहेगा आपको। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, कॉनिडिया, कॉनिडिया कैसे फॉर्म हुआ था, याद है ना आप लोगों को, कॉनिडियोफोर्स, ये देखो कॉनिडियोफोर्स के ऊपर ये छोटे 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 ये कॉनिडिया थे। ओके, रिमेंबर ना, फिर ये रिलीज हो गए थे ऐसे ऐसे करके, फिर ये जर्मिनेशन हुआ था, फिर जर्मिनेशन होके फिर ये माइसेलियम फॉर्म हुए थे, रिमेंबर ना। उसी चीज को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, नथिंग एल्स, उसी चीज को टेबुलर फॉर्म में, कॉनिडिया कॉनिडियोफोर्स पे प्रोड्यूस होता है, एंड ऑल्सो रिमेंबर ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजिनसली, एक्सोजिनसली। ओके, दैट मीन्स ये बाहर फॉर्म हो रहे हैं, एंडोजिनसली नहीं फॉर्म होते, वो टिप, कॉनिडियोफोर्स के टिप पे फॉर्म होते हैं। ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट germination होगा, and after germination they'll form mycelium. Again what happens, this will continue, again they'll form conidia in the conidiophores, and then this process will get repeated. Done? Am I clear to you all? Chalo, next is asexual is done. Okay, right? Chalo, now we'll go to sexual reproduction. Sexual reproduction कैसा होता है, sexual spores are called ascospores which are produced endogenously in sac-like asci, that is singular excus. Sexual reproduction ascospores, मैंने आपको बोला था ascospores जो है वो इनसाइड, जैसे कि इनसाइड फॉर्म होगा, जस्ट लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स, ascospores भी इनसाइड फॉर्म होगा endogenously in sac-like asci, that is singular excus. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. ये जो asci है ना, दे विल बी अरेंज्ड, कैसे, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं उसको क्या कहेंगे, एस्कोकार्प्स कहेंगे। ओके, तो ये एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट आई शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम है विच आई एम गोइंग टू शो यू। चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इसमें जैसे कि मैंने कहा है आपको, वेट, ओके चलो कोई नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फ्यूजन होगा, और फिर बाकी स्टेप्स में आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताती हूँ। ओके, प्लाज्मोगेमी से कैसे न्यू माइसेलियम फॉर्म होगा, राइट। ओके, चलो, सो दिस इज के जो है पहले फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा बिटवीन द टू स्पेसिस, इन दोनों का फ्यूजन होगा, टू इंडिविजुअल गैमेट्स, तो ये फ्यूजन। ओके, ये फ्यूजन, फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। रिमेंबर मैंने फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया था आपको, फ्यूजन फिर कार्योगेमिट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वही स्टेप होने वाला है, वही स्टेप है, ध्यान रखिए। ये देखो, तब प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू, फ्यूजन होगा, टू प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा प्लाज्मोगेमी में, तो क्या होगा, then dikaryon will be formed. Okay, that means two nuclei, di means यहाँ two nuclei form होंगे। Am I clear to you all? प्लाज्मोगेमी में फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, ऊपर जो क्या है, टू प्रोटोप्लाज्म लिए उनकी फ्यूजन करवाएं, तो क्या फॉर्म हुआ है, this formation is known as dikaryon. Okay, am I clear to you all? dikaryon formation होगा, and then क्या होगा, डाइकार्यन फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, एस्कोजिनस हाइफी फॉर्म होगा। ओके, कुछ नहीं है, जो हाइफी हम सिंपल हाइफी कहते हैं ना, एस्कस होगा उसमें। ओके, एस्कोजिनस, दिस इज एस्कोजिनस हाइफी, दिस इज एस्कोजिनस हाइफी, और डाइकार्योट स्टेज ऐसे ही रहेगा, एक हाइफी फॉर्म होगा, क्या नाम होगा इसको, एस्कोजिनस हाइफी। ओके, एम आई क्लियर, एस्कोजिनस हो गया। उसके बाद क्या होगा, उस एस्कोजिनस से ये जो डाइकार्यन आप देख रहे हैं, दैट विल मूव अपवर्ड, क्या होगा, देखो ये है, ओके, ये है, दिस एस्कोजिनस है, ये यहां मूव हो जाएंगे, ठीक है,
एम आई क्लियर? एस्कोजिनस, ये एस्कोजिनस हाइफे है, ओके, एस्कोजिनस हाइफे है, और यहां से क्या होगा, एस्कस फॉर्म होगा, क्या होगा, एस्कस, ओके। चलो ये स्टेप क्लियर। अब क्या होगा, हाइफे फॉर्म हो गया, एस्कस रिलीज हो गया, एस्कस आ गया, डाइकैरियन जो न्यूक्लियस है दैट विल मूव टू द एस्कोजिनस, क्योंकि उस एस्कस, एस्कोजिनस क्या स्पोर से तो है वो, उसको बाहर आना होगा कि नहीं, चलो बाहर आएगा ये। अब क्या होगा, कारियोगेमी होगा, क्या होगा, अब दैट स्टेप विल बी कारियोगेमी। कारियोगेमी होने के बाद न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या है वो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, अंदर कौन सा एस्कोजिनस के अंदर वो डॉट डॉट देख रहे हो आप, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, देखो दिस, ओके, दिस 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 दिस, ओके। तो यहां पे क्या होगा, फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाएगा, क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ओके। एम आई क्लियर? पहले प्लाज्मोकेमी होगा, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, एंड देन डाइकैरियन स्टेज फॉर्म होगा, देन हाइफी होगा, एस्कोजिनस हाइफी, फिर एस्कस निकलेगा, एंड देन एस्कस, वो दो एस्कस क्या होगा, फ्यूज होंगे, कारियोगेमी होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। यहां तक क्लियर हो गए? चलो इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस, इसके बाद होगा मियोसिस। सेम स्टेप जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, उसी स्टेप को हम दूसरे डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब हम बनाएंगे, इसमें एस्कोस्पोर्स होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, अब मियोसिस होगा, तो क्या होगा, 4 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, ओके। ये देखो दिस, ओके, दिस 1 2 3 4 एस्कोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड। तो इसको क्या कहेंगे, दिस 4 इज नॉन एज एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, एम आई क्लियर? एंड इसको क्या कहेंगे, एस्कस, एम आई क्लियर? हो गया कि नहीं? चलो एस्कोस्पोर्स बन गया, मियोसिस डिवीजन भी हो गए। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो जाएगा आउटसाइड द एस्कोस्पोर्स, अ फ्रूटिंग बॉडी विल बी फॉर्म्ड। तो क्या होगा, देखो डायग्राम, ये हो गया, ओके, ये हो गया। चलो यहां तो 4 है ही, 4 है कि नहीं? अब इसके बाहर क्या होगा, यहां पे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज a fruiting body that is formed in case of ascomycetes. Done? Am I clear? ये है एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी, ओके, फ्रूटिंग बॉडी है ये, ओके, और ये अंदर वाला एस्कस, ठीक है। अब क्या होगा, एस्कोस्पोर्स रिलीज हो जाएगा यहां से, एस्कोस्पोर्स विल गेट रिलीज्ड, ओके, एस्कोस्पोर्स विल गेट रिलीज्ड, एंड व्हाट हैपेंस, फिर होगा जर्मिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था, जब स्पोर रिलीज हो गए हैं अब जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन इज डन, नाउ व्हाट हैपेंस, आफ्टर जर्मिनेशन अगेन दिस स्टेप विल कंटिन्यू। 2 प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन से शुरू हुआ था, एस्कोस्पोर्स बन गया, फिर जर्मिनेट होके वैसे ही स्टेप में आ जाएगा। सो दिस इज डायग्राम ऑफ एस्कोमाइसिटिस, ओके। चलो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। Next we'll see the example of ascomycetes. Very interesting about the example. सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने में पहले ही बता रही हूँ आपको। Yeast is employed in bakeries and breweries. Okay? Yeast you know जैसे कि अगर आप पिज्जा सबको पसंद है कि नहीं? I hope सबको पसंद होगा। होम डिलीवरी तो सब करते होंगे, राइट? पिज्जा क्या होता है, उसमें ईस्ट यूज करते हैं उसमें बिस्किट बनाने के लिए, या फिर आप अल्कोहल जो होता है, स्टार्टर कल्चर डालते हैं उसमें, पहले ईस्ट डालते हैं, ओके। तो ईस्ट जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ बेकरी, जितने भी प्रोडक्ट बेकरी के होते हैं, बिस्किट हुआ, चाहे केक हुआ, चाहे पिज्जा हुआ, सब में ईस्ट की जरूरत होती है। ईस्ट का बहुत ज्यादा काम है, और वो क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। आप अगर भूलोगे तो ये गलत बात है। ईस्ट क्या है? ईस्ट इज यूनिसेलुलर, रिमेंबर,
चलो, दिस इज डन। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक स्पेसिस है पेनिसिलियम का, दैट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाने में पेनिसिलियम नोटाटम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ है, तो नीट में ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और एस्परजिलस नाइगर का भी क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना है आपको। एस्परजिलस नाइगर जो है, दिस इज नोन एज वीड ऑफ लैबोरेटरी एंड प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस नेचर जो होता है ना, वी ऑल जो लैब में काम करते हैं वो एस्परजिलस नेचर को यूज करते हैं फॉर द लैबोरेटरी पर्पस, लैब के काम के लिए। ये रिमेंबर याद रखना है, एस्परजिलस नेगर दैट प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड, दिस हैव टू रिमेंबर। एंड इससे तो हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्लेविसेप्स पुरपुरिये, this causes ergot disease of bajra, a narcotine drug LSD is obtained from it. Okay, Claviceps purpurea का ergot disease of bajra करते हैं, and a narcotine drug is obtained from it. This you have to remember about the Claviceps purpurea. And also ergotin drug, क्या drug होता है? ergotin, ये भी याद रखना है, ergotin drug is obtained. Ergotin drug is obtained from it. Okay, चलो, इसमें से आपको क्लेविसेप्स पुरपुरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस नाइगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट इज न्यूरोस्पोरा। ये भी बहुत बाहर आ गया एग्जाम में, तो उसको याद रखिए। न्यूरोस्पोर इज नॉन एज रेड और पिंक मोल्ड। दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज कॉमन नेम, और ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की रेड और पिंक मोल्ड किसे कहते हैं। तो न्यूरोस्पोरा हमेशा याद रखिए, रेड और पिंक मोल्ड कहते हैं। एंड न्यूरोस्पोरा क्रसा, इसका नाम पूरा नाम पता है क्या है? न्यूरोस्पोरा क्रसा, CRASSA। न्यूरोस्पोरा क्रसा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। कहाँ यूज करते हैं? इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक। जो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, दे ऑलवेज यूज न्यूरोस्पोरा क्रसा। ओके, and also you have to remember this Neurospora is known as Drosophila of plant kingdom. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? Drosophila of plant kingdom, you have to remember. Okay, next है Morchella। ये क्वेश्चन तो हर साल आते हैं ही है, नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। Morchella and truffles are edible। ये Morchella का जो स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं? मॉडल्स भी कहते हैं। Morchella और truffles ये एक ऐसा फंजाई है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। मोर्चेला एंड ट्रफल। और एक चीज आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन्स का भी क्वेश्चन आता है, ये एस्कोमाइसिटिस में ही बिलोंग करते हैं। ये क्या करते हैं? दे आर कार्सिनोजेनिक, दैट इज दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मींस दैट इज दे कॉज कैंसर। क्या करते हैं? ये अफ्लाटॉक्सिन जो है ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर कॉज करते हैं। क्या करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं अफ्लाटॉक्सिन। ओके, तो ये याद रखना है आपको, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ओके, चलो चलो आज का क्लास हो गया। सो आई हैव कंप्लीटेड टुडे फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। आपको क्या करना है? आपको सारे एग्जाम्पल्स, आपको नहीं याद होता, लिख लिख के याद करिए। ओके, सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। ओके, सारे एग्जाम्पल्स। ओके, देन फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, सभी सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई कंप्लीट कर देंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। 2 क्लासेस आर लेफ्ट, वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं डिटेल्स में। 2 classes is covered today. Next 2 classes I'll cover tomorrow. Okay. So if you have any doubts regarding kingdom fungi, बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, and for that I'm telling you specially, fungi is not that tough. It's very easy. Just you have to know the terminology with the help of diagram. You have to understand it. And if you have any doubts regarding any part of kingdom fungi, you can WhatsApp me. You can comment me. Okay. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.